Good evening, ladies and gentlemen. While India awaits Lord Ram's return to his rightful abode after a wait of nearly 500 years, the opposition parties, who also call themselves India, that is Bharat, have boycotted Ram Darshan on the Pran Pratishtha day of 22nd of January. Hard to believe, but it's true. Remember, the Congress party was caught in a dharm sankat after Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary were invited by the temple trust for the Pran Pratishtha on the 22nd of January. Today, they have formally rejected the invite, saying, and I quote, "Religion is a personal matter. But the RSS BJP have long made a political project of the temple in Ayodhya. The inauguration of the incomplete temple by the BJP and RSS is for electoral gain. While abiding by the 2019 Supreme Court judgment and honoring the sentiments of millions who revere Lord Ram, Kharge, Sonia Gandhi and Adhir Ranjan Chaudhary have respectfully declined the invitation of what is clearly an RSS BJP event. Listen in to the Congress's claim that the BJP is the one politicizing Ram." I don't want to explain anything. सर जो स्टेटमेंट दिया वही Everything is in that statement. Nothing more than that. in the statement it said that BJP RSS event it is turned Ayodhya. That is true. That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. ये धर्म आस्था का विषय है। भाजपा उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। आमंत्रण मिल रहा है, कौन जाएगा, कब जाएगा, ये भाजपा और बीएचपी थोड़ी तय करेगी। भाजपा राजनीति करना चाहती है, उसकी इस घटिया राजनीति को लोग समझते हैं। Not only has the Congress decided to boycott the consecration ceremony, their leaders and allies have constantly sullied and maligned Lord Ram himself. Let's remind you how. They will have to decide what kind of a nation they want to build. Do they want to build a Hindu Rashtra, or they want to build a nation which is truly secular? रामाचा आदर्श राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? Prime Minister goes to a Nisad family, that he goes to a lower caste person. Then what does it show? That you are trying to bring back the old system? It is straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. भाजपा राम को वो बूथ एजेंट की तरह ट्रीट करता है। वोट में राम जी को उनका बूथ एजेंट की तरह ट्रीट करता है। Meanwhile, there's ambiguity over the Ram Mandir invite in the India bloc. Former Chief Minister Ashok Gehlot sulks that Congress has not been given any credit and vows to go even if he doesn't get an invite. Disconnect within the party? We don't know. X doesn't know what Y is doing, left hand doesn't know what right hand is doing. But meanwhile, Akhilesh Yadav, who was invited by the VHP, said that he wouldn't go unless someone known to him invites him. This at a time when there are these posters outside the Samajwadi Party office welcoming Lord Ram to Ayodhya. Listen in to Ashok Gehlot and Akhilesh Yadav caught in a dharm sankat. तो राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को बनाने के अंदर। उसके लिए कोई नाम नहीं ले रहा है, ना मोदी जी ले रहे हैं, ना वहाँ के जो लोग हैं। मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया था और उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया और जाके इसको पूरा टेक्निकली एरिया को निकलवाया गया भारत सरकार से, पर्यावरण से और फॉरेस्ट से, तब जाके मंदिर का निर्माण हो सका है। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते, भूल रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए इसका मतलब। बुलाया नहीं बुलाया, उनकी मर्जी, नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। परिषद में आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। The BJP has now attacked the anti-Sanatan stance of the India alliance, which has now even politicized Ram. Listen in to the BJP's attack.
इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया। और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। Today, the Congress party has taken a righteous stand against Ram allegedly being used for electoral gain. But by the BJP, let's give you a fact check, Newshour fact check that will remind you how Congress itself has used the Maryada Purushottam for appeasement and for votes. Watch this. It all began in 1986 when the locks of the Babri Masjid complex were opened under Rajiv Gandhi's regime. This was seen as a balancing act after appeasing the Muslim community by overturning the Shah Bano judgment. Opening the Babri gates was viewed as a political move to appease the Hindus at that time. And then in 1989, Rajiv Gandhi sought votes in the name of Ram and Ayodhya in this very temple town of Ayodhya. Ahead of the 2019 Lok Sabha elections, Rahul Gandhi was depicted as Lord Ram in a poster put up by the Congress party in Bhopal, while Prime Minister Modi was shown as Ravan. Similar posters were also put up in Patna showing Rahul Gandhi in Ram Avatar. Yet today, they boycott the darshan of Ram's Pran Pratishtha, saying it is now a political event of the BJP under Prime Minister Modi. So, ladies and gentlemen, the legitimate question we are asking on the Newshour tonight, is it Ram Virod or Modi Virod for the Congress party leading them to this boycott? That's the question and that's the debate on the other. You're watching the News Hour at 9, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining me on the debate, Dr. Shalabh Tripathi, MLA and spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Vivek Srivastava, political analyst, Tariq Ahmad Ladi, Samajwadi Party leader. But my first question goes to Lokesh Jindal, political analyst. Lokesh Jindal ji, बहुत अच्छी बात है, Congress party is not going to the Pran Pratishtha because religion is a personal matter. But there are enough visuals of iftar parties attended by various leaders of the Congress party, including Rahul Gandhi. There are pictures of Rahul Gandhi going into masjids offering namaz. But Ram Mandir jaane mein personal becomes public, and that is something that has been quoted as the reason. And why? What started with a man called Sita Ram Yechuri, who said that this invite and this function is against the constitution, ends today with a statement from, quote unquote, Jai Ram Ramesh. Coincidence? Hypocrisy? What would you call this? Good evening, Navika. The four Shankaracharyas, they have refused to go to the Pran Pratishtha ceremony. And they have cited that the temple is incomplete and the entire ceremony is not being conducted as per the Vidhi Vidhan of the Shastras. It is important to understand that the Hindu religion that an ordinary Indian follows, it is as per the Vidhi Vidhan and Shastras, not as per the dictates of the political party like BJP. What BJP is doing, it is not allowing the priests, the saints who have lived the life of preaching, practicing Hinduism to carry out the Pran Pratishtha. But it is Prime Minister Narendra Modi, I don't know in what capacity, where is it written in the Shastras that a political person who has no religious, I would say, affiliation or
or training or has never been into priesthood is going to provide the Pran Pratishtha. So what I am saying here is such an important event, such an important ceremony is being politicized. And it is unfortunate that the religion is being manipulated. The religion is being used as a means to gain political end. This is unfortunate, and the Congress party knows very well that it, rather than reaching out to the Hindus, it is hurting the sentiments of Hindus because their religion is being manipulated. That is why they are not going to the event, and I welcome it. Okay, fantastic, great, lofty ideals, very well. लेकिन तब क्या हुआ था जब शिव भक्त बन गए थे राहुल गांधी? तब क्या हुआ था जब जनेऊधारी बन गए थे राहुल गांधी, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लिया था? तब क्या हुआ था जब मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले महाकाल चले गए थे चलममणि त्रिपाठी जी? तब रिलीजन प्राइवेट नहीं था, तब पब्लिक हो गया था। तब कांग्रेस पार्टी ने रिलीजन को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं किया था, वो तो सिर्फ बीजेपी करती है। जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी को। नाविका जी, हम सब तो बहुत हैरान हैं कि जिस भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को लेकर छूने के मात्र से, स्पर्श मात्र से लोगों की आंखें नम हो जा रही है, लोग भावुक हो रहे हैं। इस देश के लोग, इस दुनिया के लोग, उसका कितने अपमानजनक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया है वो आप सबके सामने है। और ये साबित करता है कि भगवान राम के नाम से कितनी नफरत कांग्रेस के मन में है, कितना हृदय में उनकी नफरत। और ये पहली बार नहीं है, ये तो लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि बुद्धि खुल गई हो, शायद कुछ समझ में आ जाए, लेकिन किसको याद नहीं है। इस देश के राम भक्तों ने तो वह भी बर्दाश्त किया है जब भगवान राम को फटे हुए टेंट के भीतर इन लोगों ने रखा, और जब राम भक्त जाते थे कि भाई ओला गिरता है, बारिश होती है, तूफान गिरता है, केवल टेंट को सिल लेने दीजिए, तब ये कहते थे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सिलने देंगे, जैसे चल रहा है वैसे रहने दो। इन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं, इन्होंने भगवान राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा। एक तरफ भगवान राम लला विराजमान स्वयं अदालत में होते थे और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल उनके खिलाफ मुकदमा लड़ते थे। इसको भी बर्दाश्त किया लोगों ने। इन्होंने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, इन्होंने कहा कि वहां शौचालय बनवा दो, मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो हमें लगता था नाविका जी कि शायद हो सकता है कि गठबंधन, जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल है वो शायद ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की, ये पूरी सोची समझी रणनीति थी कि इंडी गठबंधन के लोगों के मुंह से, उनकी जुबान से भगवान राम के बारे में आप शब्द कहलवाओ, रामचरितमानस के बारे में आप शब्द कहलवाओ, सनातन को डेंगू कहलाओ, मलेरिया कहलाओ, एड्स कहलाओ। ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने किया था और आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम के मंदिर का हमेशा विरोध किया, भगवान राम का विरोध किया, आज मुझे लगता है उनका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन हमको विश्वास है इस देश के राम भक्त बहुत धैर्यवान हैं, बहुत धैर्य रखने वाले हैं। भगवान राम सबका कल्याण करेंगे। इन्होंने भगवान राम के सामने देखा है क्या किया इन्होंने, आगे चल के कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक तरीके से आमंत्रण ठुकराया है, भगवान राम तय करेंगे कि उनके साथ क्या होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर प्रियंका गांधी वाड्रा जी के हैं। और आचार्य जी, प्रणाम भी करती हूं आपको और आज आपसे पूछती हूं, इस देश में तेरे राम मेरे राम कब से हो गए? मुझे लगा था कि राम सबके हैं। ये बीजेपी आरएसएस के राम कौन से हैं, आपके राम कौन से हैं, और सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के राम कौन से हैं, और जय राम के नाम में जो राम है ये कहां से आते हैं? क्या ये अलग अलग राम हैं या राम को ही चीर फाड़ कर अलग अलग कर दिया है? नाविका जी, पहली बात तो ये है कि राम सबके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पे कोई बहस का विषय भी नहीं है, और सब राम के हैं। राम के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, ना राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण पत्र मिला और उन्होंने उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत ही ज़्यादा वेदना दे रहा है, ये बहुत ही दिल दुखाने वाला ये फैसला है। और इससे सिर्फ मेरा नहीं है, करोड़ों ऐसे हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो भगवान राम में जिनकी आस्था है और वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनको सबको ये फैसला जो उनके दिल को दुखा रहा है।
तो ये फैसला क्यों किया गया, कैसे किया गया, इतने विलंब से किया गया, और इसमें बड़ा मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि ये फैसला उस कांग्रेस ने किया है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। महात्मा गांधी हर सभा में शुरुआत में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम इसकी धुन गाते थे, और ये फैसला जो हुआ है इससे बहुत ज़्यादा आघात लगा है हम लोगों को। जहाँ तक सवाल है कि अयोध्या ना तो सिर्फ भाजपा की है, ना सिर्फ कांग्रेस की है, ना सिर्फ किसी और पार्टी की है, और ना राम किसी पार्टी के हो सकते हैं। नाविका जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली ये फैसला उस पार्टी ने किया है जिस पार्टी में मैं हूँ और जिस पार्टी के साथ मैं हूँ, और मैं इसलिए ज़्यादा दुखी हूँ आज कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था, और मैं नहीं, करोड़ों हमारे हिंदू भाई बहन ये सोच रहे थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, आज वो बहुत दुखी हैं। वो सब ये सोच रहे थे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला कराया है, और ये फैसला हो चुका है। मैं कांग्रेस नेतृत्व से आज पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। राम मंदिर को भाजपा से जोड़ के ना देखा जाए। राम मंदिर ना भाजपा का है, क्या कांग्रेस पार्टी आरएसएस का है, महात्मा गांधी की राह से भटक गई है? सरकार का भी नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी अब वो महात्मा गांधी की पार्टी नहीं रही? देखिए नाविका जी बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने ये, और ये सवाल मेरे सामने नहीं है, ये सवाल उन 12-14 करोड़ लोगों के सामने भी है जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के संकट के समय भी लगभग 14 करोड़ लोगों ने वोट दिया, और उन सब के सामने है। और आज हम इस बहुत ही एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ऐसा फैसला क्यों लिया गया। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें, जैसा मैंने पहले आपसे कहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग धर्म का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत से लोग शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य जो और तमाम रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, उन सब से निवेदन भी करना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पे, निर्देश पे भारत सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया है। वो ट्रस्ट के जो लोग हैं, हो सकते हैं किसी एक संगठन से जुड़े हों, हो सकता है किसी सर्विस में रहे हों, लेकिन वो भारत के लोग हैं। आखिर अगर मान लीजिएगा थोड़ी देर को राम मंदिर का निर्माण का फैसला कोई और करता, तो राम मंदिर बनाने के लिए लोग तो भारत के ही होते, राम मंदिर का न्यास में भारत के ही लोग होते, तो सभी ने सहर्ष स्वीकार किया था। आज का ये फैसला, कांग्रेस पार्टी का फैसला, मेरी समझ से बाहर है, बड़ा दुखद है, बहुत पीड़ादायक है, और मुझे वेदना हो रही है कि मेरी पार्टी ने ये फैसला किया है, और मैं इसीलिए बार बार ये बात कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं हो सकती है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं हो सकती है। हमारी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई राम से कैसे होगी? लोकेश जिंदल, हमारी लड़ाई भाजपा से, आरएसएस से हो सकती है, विश्व हिंदू परिषद से हम लड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से लड़ सकते हैं, लेकिन हम अयोध्या से कैसे लड़ेंगे? और सवाल इस बात का कि अब हम अयोध्या दूसरी कहां से लाएंगे? हमारे लिए तो जीवन में एक ही अयोध्या है। तीसरी बात यह है कि हम राम मंदिर बनाने का फैसला अब अगली बार कैसे करेंगे? चौथी बात है, क्या हम और राम मंदिर बनाएंगे? राम यही हैं, राम यही जन्म हुआ, राम का मंदिर बना। हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से राम के मंदिर का उद्घाटन देख रहे हैं। कितनी आंखें थी नाविका जी जो बंद हो गई, कितने अरमान थे जो खत्म हो गए, जो लोग देखना चाहते थे ये 500-600 साल का संघर्ष। इसके बाद ये जो 22 जनवरी है, ये सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन का दिन नहीं है, ये भारत के गौरव का दिन है, ये उत्सव का दिन है। और जब देश का सवाल आता है तो सब लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। मैं सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है उनको भी, जिन्होंने अस्वीकार किया उनको भी, वो सभी अपने अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें, क्योंकि राम सबके हैं, सब राम के हैं। लोकेश जिंदल जी, पर आप ना सिर्फ राम के खिलाफ हैं, आप तो महात्मा गांधी के भी खिलाफ हो गए। Absolutely not, Navika ji. In fact, the four Shankaracharya, they have criticized why is such a hurry to do the Pran Pratishtha when the temple itself is incomplete.
It is against this form of politicization that Congress is criticizing the BJP. Let me remind you, when it came to construction of Ram Temple, the very pink sandstone that was used from Rajasthan at that point of time, its mining was banned, but still Ashok Gehlot government made sure that the stone was made available and there was no hindrance to the construction of Ram Temple. राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन, राजस्थान के पिंक sandstone became the Congress's property because the Congress had a government there. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राम इनके नहीं है लेकिन सैंडस्टोन इनका है, इसलिए देश के करोड़ों राम भक्तों को इनके सामने श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिए कि ये राम के पास तो नहीं जाएंगे लेकिन हम इनके चरणों में जाएं कि इन्होंने पत्थर वहां पर पहुंचाया। क्या बात है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आर्ग्यूमेंट है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि लगातार एक झूठ बोला जा रहा है और चूंकि जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो टाइम्स नाउ पर ये क्लैरिफाई होना चाहिए और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि www.sringeri.net जो दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य हैं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ जी महाराज, उन्होंने क्या कहा है? मतलब आप सोचिए कि शंकराचार्यों पर कितना दबाव है कि उनको भी स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा है। ठीक है, किन्हीं शंकराचार्य ने कुछ ऐतराज जताया होगा, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य एकदम नाराज हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कुछ धर्म द्वेषियों ने मेरे नाम का गलत उपयोग करके भारती तीर्थ जी महाराज के छायाचित्र के साथ ऐसे संदेशों को डाला है, परंतु श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कुछ भी संदेश नहीं दिया है। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र पावन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। तो एक तो ये तथ्य है और वो ये भी कह रहे हैं कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुसंदर्भ में यथा योग्य भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बनकर कृतार्थ हों। झूठ नहीं बोलना चाहिए। फेक न्यूज, लोकेश जिंदल जी, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ. फेक न्यूज has been called out. Harshvardhan, you can check any news portal. It is clearly out that the four Shankaracharyas, they have criticized the manner in which this Pran Pratishtha ceremony so is you want Ram Lalla to remain in the tent. Why aren't the saints doing the Pran Pratishtha ceremony? Why is it that we are having a political entity, a political person doing the Pran Pratishtha ceremony? On top of that, even Nishchalachanand Saraswati has even questioned that if at all as per Vidhi Vadhan, as the Pran Pratishtha ceremony is not done, it is incomplete and it can have negative repercussions as well. You should read the article before coming up with the theory, sir. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा है कि अब देश भर के लोग किसी मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहुत विस्तार से सब जान जाएंगे। तो बहुत आभार शंकराचार्य जी का, बहुत आभार है विद्वान जनों का, लेकिन ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वो करता है जो उस मंदिर को लेकर जिसके भाव होते हैं। हर जगह शंकराचार्य जी थोड़ी नहीं जाते हैं। हमारे पिताजी ने अपने गांव में एक मंदिर बनवाया है, तो किसी पुजारी को थोड़ी नहीं लाए। यजमान और पुजारी दोनों में फर्क होता है। शंकराचार्य, लोकेश जी आपकी बड़ी खराब आदत है, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप बोलने लगते हैं। या तो आप तथ्य ऐसा आप बात पूरी करें, उसके बाद में बोलना पड़े, ऐसे क्यों करते हैं? हर्षवर्धन जी बात कीजिए। ये जो बार बार कहा जाता है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पूरा आंदोलन है, ये जो पूरा संघर्ष है, उसमें जो लोग सहभागी रहे वही उसमें शामिल है। सभी शंकराचार्य, सभी जितनी उपासना पद्धति हैं, जितने दर्शन हैं, जितने अखाड़े हैं, जितने पंथ हैं, जितनी पूजा पद्धति है, वो सब इसमें शामिल है। कोई वहां जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई घर से कर रहा है। और लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी को खुद आकर खंडन करना पड़ता है। उनके यहां से एक स्पष्टीकरण आता है और वो कहते हैं कि हमारे यहां तो दीपावली से लेकर, जो दीपावली बीत गई, दीपावली से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक नियमित
यज्ञ हवन मंत्र का जाप चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुओं के इस सबसे बड़े पर्व, सबसे पावन दिन को लेकर किसी भी तरह का झूठ फैलाने वाले सचमुच वही काम कर रहे हैं। और मैं इसको एक लाइन जोड़ दूं कि जो भी आस्थावान हिंदू होगा ना नविका जी, वो राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कभी भी निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता है। आचार्य जी देखिए नाविका जी, एक तो शंकराचार्य जी की बात कही जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शास्त्र का विषय है, कर्मकांड का विषय है। इस पर राजनीतिक लोगों ने कब से पीएचडी कर ली। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो राम जिनके नाम से पत्थर तैर जाता है, वो राम जो जीवन के पहली सांस से लेकर अंतिम तक राम नाम सत्य हो जाता है, जो राम शाश्वत हैं, जो राम सत्य हैं, जो राम सनातन हैं, जो राम जिनको हमने अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहा है, जिस राम के बारे में तुलसीदास लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, जो राम हमें इस लोक से परलोक तक पार करते हैं, उनके मंदिर के लिए पहली बात तो मुहूर्त देखने की जरूरत पड़ेगी। हमारा शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है उसे शीघ्र करो। और एक सवाल मैं करना चाहता हूं अपने बहुत ही प्रिय लोग के, कि ये जो कांग्रेस के हमारी पार्टी के कुछ नेता जिन्होंने ये फैसला किया है, जिन्होंने चिट्ठी जारी की है, इन्होंने कितने शास्त्र पढ़े हैं, इन्होंने कौन सा वेद का अध्ययन किया है, इन्होंने कितने पुराण पढ़े हैं? क्या अगर इस भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा होती तो ये इसमें जाते, नंबर 1। नंबर 2, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यह कहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूं। क्या उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के नेता भी न जाएं? क्या उन्होंने कहा है समाजवादी नेता ना जाएं? और जहां तक निश्चलानंद सरस्वती जी का सवाल है, जहां तक भारती तीर्थ जी का सवाल है, जहां तक अभी मुक्तेश्वरान जी का सवाल है, सारे समस्त पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ये कहते हैं कि काशी और मथुरा हम तत्काल हिंदुओं को सौंप दो। तो क्या आप उनके इस कथन से सहमत हैं? क्या उनकी इस बात को भी मानने के लिए तैयार हैं? प्रश्न ये नहीं है नाविका जी, प्रश्न है राम हमारी आस्था के आधार हैं, राम कण कण में व्याप्त हैं, राम राजनीति से परे हैं, राम सबके हैं, सब राम के हैं। राम का मंदिर बड़ी तपस्या के बाद, बड़े संघर्ष के बाद बन रहा है, और राम के मंदिर के बनने के फैसले के बाद भारत के किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि तुम वहां जाना या मत जाना। इसलिए जितने भी राजनीतिक दल के नेता राम मंदिर के इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए इन फैसलों पर पुनर्विचार होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आई एम कमिंग टू यू लोकेश, बट विवेक श्रीवास्तव, the question is, has God, I know people from the Communist Party don't believe in God, they are atheists, but there are people who believe in God. Can politics be above people's belief? Right. Today, has politics been put above God? I mean, see, if you, I was just watching on Twitter Sitaram Yechury's tweet where he said right to faith also has to be protected, which means you have a constitutional right to worship, you have a constitutional right to go to a masjid or a mandir. It is your constitutional right and nobody is saying anything about it. The issue is, are you trying to mix religion and politics, or are you using religion for a spiritual growth? दैट इज द बिग क्वेश्चन। आध्यात्म की बात है या राजनीति की बात है? यहां सारे पॉलिटिशियन धर्मगुरु बनते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और सारे जो धर्मगुरु हैं वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। सो देयर हैज टू बी अ डिवाइडिंग लाइन। द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज अनफॉर्चुनेट, इट विल ओनली कैरी ऑन डिविजन्स। नोबडी इज अगेंस्ट लॉर्ड राम, nobody is against Dharmguru. So then tell me when Rahul Gandhi goes to masjids, when he wears a skull cap, is that not mixing religion with politics? Yes. But Rahul Gandhi is acceptable to you. The question therefore arises, is it being Modi Virod, I'll tell you the which difference. is becoming your Ram Virod? Talk of iftar parties, there is a lot. ये तो मस्जिद में है, इफ्तार पार्टी नहीं है। Of confusion. People are saying iftar party में चले गए साहब, iftar party में चले गए। No, iftar party में you don't go and you start doing pran pratishtha, or you don't become a Maulvi. You are simply trying, it's like a Bhandara. You are simply trying to show your goodwill to another community.
And here, the Honorable Prime Minister of India, I mean, if you listen to what the Honorable Shankaracharya has said, he is very clearly saying that the event has become political. The mandir has not been constructed fully. It should have been done on the Ram Navami day, which is on 17th of April. But it has been preponed for 2024 elections because after one month of the Ram Navami, they will have Achar Sanghita and elections are going to come. Shalabh Mani Tripathi ji, please respond. नाविका जी देखिए, आपके चैनल पे ही बहुत स्पष्ट हो गया कि केवल राम मंदिर का जो आमंत्रण है सिर्फ उसको ठुकराया नहीं है, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में कैसे रंग में भंग डाला जा सके कांग्रेस के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जो चट्टे बट्टे दल है वो किस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए झूठ खुल गया, हर्षवर्धन जी को साधुवाद, मैं भी बोलने जा रहा था, हर्षवर्धन जी ने खुलासा कर दिया कि किस प्रकार से मिसकोट करके जो हमारे धर्माचार्य हैं उनको मिसकोट कर करके किस प्रकार से इस पूरे आयोजन को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया सके, ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिश है। लेकिन आप भूल रहे हैं ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जब इकबाल अंसारी, कितने शंकराचार्य आ रहे हैं बाबरी मस्जिद 22 जनवरी को, कितने शंकराचार्य बताइए आप जरा मुझको। बोलने दीजिए प्लीज टेल मी हाउ मेनी शंकराचार्य आर कमिंग ऑन 22nd बौखलाते बहुत हैं लोग। अरे बौखलाइए मत नाविका जी को शांत कराइए। इकबाल अंसारी साहब जो कि पूरे केस में बाबरी मस्जिद का केस आ ही नहीं रहा है कोई, इकबाल अंसारी साहब ने जाके प्रधानमंत्री जी पे पुष्प वर्षा की, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाके उन्होंने फूल फेंके और इकबाल अंसारी ने कहा कि मुझे आमंत्रण मिला, मुझे मेरे लिए खुशी की बात है। उन्होंने मिठाई खिलाई, जो लोग उनके पास इनविटेशन कार्ड लेकर गए उनको मिठाई खिलाई, उनके गले लगे और बोले मैं जरूर आऊंगा। और ऐसी स्थिति में अब आप समझिए कि ये नफरत बोने का काम किसने किया, ये पूरा जहर बोने का काम किसने किया, भगवान राम के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करने का काम किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने। लेकिन आपको इस देश की जनता ने सबक सिखाया है और इसीलिए राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड भागना पड़ा। इस बार आप देखिएगा ये हालत होगी ना, ऑनरेबल शंकराचार्य को भी आप सबक सिखाएंगे, कोई लोकसभा नहीं मिलेगी। ऑनरेबल शंकराचार्य को भी आप सबक सिखाएंगे, आपने जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा देश की जनता आपको देगी। आप भगवान राम का विरोध नहीं कर सकते, आप भगवान राम के भक्तों का विरोध नहीं कर सकते। आपने जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा इस देश के लोग आपको देंगे, क्योंकि आपने हमेशा भगवान राम का अपमान किया। आपकी हैसियत नहीं है किसी और धर्म पर टिप्पणी करने की, आपकी हैसियत नहीं है किसी और धर्म के बारे में बोलने की, लेकिन आप हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, आप मलेरिया बोलते हैं, आप डेंगू बोलते हैं, आप एड्स बोलते हैं, आपकी हैसियत लोग आपको में बंद होगी। आपके पॉलिटिकल इवेंट का बहिष्कार है और इसीलिए आप डेंगू बोलते हो, आपके पॉलिटिकल इवेंट का बहिष्कार है, मलेरिया बोलते हो, आप सनातन के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हैं, आप रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी करते हैं, आप भगवान राम के बारे में टिप्पणी करते हैं। राम मंदिर जाना है सब जाएंगे, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, जवाब मिलेगा, पीपल विल गो, पीपल विल वर्शिप, जवाब दे विल नॉट अटेंड योर पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगी। आपकी जमानतें जब्त हो रही है, इसीलिए आप इस देश में राम को गाली देकर नहीं जी सकते, आप इस देश में राम को गाली देकर सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी ने राम को गाली नहीं दी है, ना ऑनरेबल शंकराचार्य ने और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी ने गाली नहीं दी है। तारिक अहमद लारी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या क्या नहीं कहा गया है। पॉलिटिकल गिमिक कहा गया है, राम आपके बूथ एजेंट बन गए हैं, राम हाईजैक हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, राम मांसाहारी हैं, कह रहे हैं किसी ने गाली नहीं दी है राम को। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे तारिक अहमद लारी साहब, आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आपकी कोई भी आस्था हो सकती है, लेकिन ये कहना कि ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, क्या ये करोड़ों ऐसे राम भक्तों के दिल पर चोट नहीं है कि इसको पॉलिटिकल इवेंट किया जा रहा है इस देश में? मैं एक पर्सनल वाक्य आपके साथ शेयर करूं। आज सुबह ब्रेड और दूध खरीदने आप जाएं ना किसी नुक्कड़ की दुकान में, वहां लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं 22 जनवरी की तैयारी है क्या? ये लोगों में कहीं ना कहीं श्रद्धा भी है और एक एक्साइटमेंट भी है, लेकिन राजनीति क्या आज लोगों की आस्था और भगवान राम से ऊपर जाकर बैठ गई है? चलिए मैम, सबसे पहले आपकी एक बात का जवाब दें, जो आप बार बार अवतार पार्टी कह रही हैं, क्या अवतार पार्टी यहां पे होती नहीं थी? ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्ड है जो पर्सनली मेरे नाम से व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अवतार पार्टी, ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अवतार पार्टी। क्या थे वो हिंदू नहीं थे?
वो हिंदू नहीं थे, वो बीजेपी के नहीं थे, वो आरएसएस के नहीं थे। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल मैम करना बंद कर दीजिए, पहली बात है। जैसे अफ्तार पार्टी में जाना है, किसी का खून कर देना। लारी साहब कॉन्टेक्स्ट समझिए। इफ्तार पासवान साहब पार्टी देते थे, इफ्तार की प्रधानमंत्री देते थे, मैं गई हुई हूँ, लेकिन अगर हम इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो हम राम मंदिर में भी जाते हैं। अगर हिंदू इफ्तार पार्टी में जा सकता है तो आप जैसी पार्टियां राम मंदिर जाने से मना क्यों कर रही है, बॉयकॉट क्यों कर रही है? सवाल ये है। पार्टी पर उंगली उठाए। नहीं, मैं बिल्कुल इफ्तार पार्टी पर नहीं कह रही, मैं उन पर सवाल उठा रही हूं जो कह रहे हैं रिलीजन प्राइवेट है। रिलीजन प्राइवेट है जब राम मंदिर का सवाल आता है, लेकिन जब मस्जिद जाने का सवाल आता है तो रिलीजन प्राइवेट नहीं होता। मैं उस पर सवाल उठा रही हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर उंगली उठाइए। है हैसियत आपकी, है बीजेपी की हैसियत की अटल बिहारी वाजपेयी जो करते थे उसके ऊपर उंगली उठा दे। आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी, आचार्य जी ना उठाइए। आचार्य जी, इफ्तार पार्टी पर किसको ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि इफ्तार पार्टी पर जाना, मस्जिद में जाना प्राइवेट नहीं है रिलीजन, लेकिन राम मंदिर में जाना रिलीजन प्राइवेट बना देता है। आचार्य जी, सवाल आज इसका है, आप आचार्य हैं, आप जवाब दें। समाजवादी, if my mind is not with समाजवादी, मैम you should resign immediately। देखिए नाविका जी, पहली बात तो यह है कि थर्ड पोजीशन इन लखनऊ, दिस इज द रीजन। नाविका जी मेरी बात सुना प्लीज। लारी साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। लारी मैं साहब किसी के बीच में सुन लीजिए। आचार्य जी, मैं किसी के बीच में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जनता बहुत। नाविका जी पता नहीं ये क्या क्या कहे जा रहे हैं और ये कहे जा रहे हैं। नाविका जी, मैं अपनी बात रखूं। नाविका जी प्लीज। जी बोलें आचार्य जी। हाँ, नाविका जी, अभी बहुत से नेताओं ने और आपके चैनल पे भी और भी मैं सुबह से सुन रहा हूं, ये बात कही है कि साहब हम 22 तारीख के बाद जाएंगे। क्या भाई पुजारी बदल जाएगा? भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी मूर्ति, क्या वो मूर्ति बदल जाएगी? या ये ट्रस्ट बदल जाएगा? या अयोध्या बदल जाएगी? तो आप, मेरी समझ में ये बात नहीं। अभी विवेक जी ने ये बात कही कि साहब हम 22 के बाद जाएंगे। भाई 22 के बाद क्या होगा? अगर आपको इस ट्रस्ट से प्रॉब्लम है, आपको इस मूर्ति से प्रॉब्लम है, आपको अयोध्या से प्रॉब्लम है, या 22 तारीख से प्रॉब्लम है, एक बड़ा सवाल ये है, ये तो सब वही रहेंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से, अगर वो भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हां, आचार्य प्रमोद कृष्णम होता हुआ जब मैं ये कहता हूं कि भाई नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि मैंने गलत कहा। लारी साहब, एक बार आप भी कहिए कि राम जितना तुम्हारे राम हमारे हैं। आप कहिए ना, तभी तो देश बनेगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं कि भोले बाबा जितना आपके उतना मेरे हैं। मैं कहता हूं माता रानी जितना आपकी उतना मेरी है। मैं उसकी पूजा क्यों करूं जो खुद शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी माता रानी की पूजा करते थे? तो मैं क्यों पूजा करूं राम जी की? मैं अल्लाह की पूजा करता हूं, मैं भोले बाबा को मानता हूं, मैं माता रानी को मानता हूं। तो आप क्या करेंगे उसमें? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। क्या कहेंगे आप इसमें? आप क्या कहेंगे? श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्रायुधर देवाधिदेवम नमस्तुते। आप क्या कहेंगे इसमें? आप क्या कहेंगे? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप क्या कहेंगे मुझे? शलभमणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए मुझे। जवाब दीजिए। शरणम गच्छामि ब्रह्मम शरणम गच्छामि। आप क्या कहेंगे मुझे? आप क्या कहेंगे? गॉड इज ग्रेट। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी, आप मुझे मैं कहूंगी आप बहुत अच्छे इंसान हैं लारी साहब, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ रही हूं। शलभमणि जी, नहीं, मुझे प्रमोद कृष्ण से जवाब चाहिए इस पे। मैं शलभमणि जी से जवाब नहीं लूंगा। शलभ भाई आप खामोश रहिए, मुझे प्रमोद कृष्ण जी से जवाब चाहिए। अरे सुन लीजिए भैया, आचार्य जी से भी लेती हूँ, आचार्य जी से भी लेती हूँ। शलभ भाई एक मिनट। अच्छा, प्रमोद कृष्ण जी से जवाब नहीं, मेरे पास समय कम है। फेडर डाउन शलभमणि जी 30 सेकंड और फिर आचार्य जी।
नाराज मत होइए लारी साहब, मैं तो कहूंगा ठीक है, आपने मंत्र रट रखे हैं, मुझे नहीं पता कि नाविका जी के शो में आने के लिए या किस लिए रटे हैं। और नहीं तो अगर मैं आपके धर्म पे कोई टिप्पणी करूं और मैं कहूं कि मैं इस नबी को नहीं मानता, मैं उस नबी को मानता हूं, तो आप मुझ पे क्या सवाल उठाएंगे? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है कि मैं आपके धर्म पे टिप्पणी करूं कि मैं 14वें को मानता हूं कि मैं 16वें को मानता हूं। आप भगवान भोलेनाथ को मानते हो, भगवान राम को नहीं मानते, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का विरोध करना है और आप इस लड़ाई में कहीं नहीं। मैं आपको दोष नहीं देता, मैं तो इकबाल अंसारी साहब की तारीफ कर रहा हूं, मैं तो के मोहम्मद की तारीफ कर रहा हूं। के मोहम्मद साहब उस टीम के प्रमुख थे जिसने जाके सर्वे किया, एएसआई के प्रमुख थे। और के मोहम्मद साहब ने कहा नीचे मंदिर था, मैंने बताया, और जब मैंने बताया तब कांग्रेस के लोगों ने कहा, उन्होंने बताया, के मोहम्मद ने बताया। तो लारी साहब से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कांग्रेस के लोगों से है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से है, जिन्होंने नफरत घोली, जिन्होंने भगवान राम को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया है, एड्स है सनातन। आपको इस पाप का भागी बनना पड़ेगा और ये देश आपको जवाब। बहुत सही कहा, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है इस वक्त। और मैं जानती हूं हम सब धर्म को मानते हैं, आपका धर्म भी हमारे लिए पलकों पर है, हमारे सिर माथे पर है, लेकिन धर्म को राजनीति के साथ मिलाना कौन कर रहा है? Is it the Congress party which is putting politics above Lord Ram, or is it really the BJP's politics that is keeping them away from the Ram Mandir Pran Pratishtha? The question is anti-Modiism becoming now anti-Hinduism? That's the question the Congress party needs to answer. We leave it at that as I thank all my panelists joining me on debate number 1.